Welcome dear students. Today's topic is types of relational calculus. So after completing this lecture, you will be able to recall the following. Like we'll be talking about the tuple relation calculus TRC and the domain relation calculus. So this topic is very important from the examination point of view because इस topic से generally आपके short answer question पूछे जाते हैं and साथ साथ query based questions भी पूछे जाते हैं that carries a lot of marks long answer type में एंड कुछ क्वेरीज को आपको टपल रिलेशन कैलकुलस या डोमेन रिलेशन कैलकुलस के थ्रू सॉल्व करना होगा. सो दैट इज वाई एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ये टॉपिक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. एंड लिंकिंग विद द अदर टॉपिक की अगर हम बात करें तो यहाँ पे हमें रिलेशन अलजेब्रा के कंसेप्ट भी यूज आएंगे एंड साथ साथ जो हमने रिलेशन कैलकुलस के बेसिक किए हैं, क्या बेसिक डिफरेंस है और कैसे हम एक वेरिएबल को स्पेसिफाई करते हैं, तो वो कंसेप्ट हम जरूर यहाँ पे यूज करेंगे. सो इट इज लिंक टू द प्रीवियस टॉपिक एंड रियल लाइफ में आपको समझ में आएगा कि हाउ टू स्पेसिफाई क्वेरीज बेस्ड ऑन अ डिफरेंट टाइप ऑफ लैंग्वेजेस ऑफ TRC एंड DRC. So now we'll be starting with first of all TRC. First of all, we'll be dealing with the first language, that is TRC, and we have already talked that TRC is non-procedural language. So that means we have to specify what to get but not how to. That means so it gives the desired information without giving any information about the procedure. तो आपको प्रोसीजर नहीं बताना पड़ता कि पहले आप ये टेबल लें, देन ये एट्रीब्यूट को सिलेक्ट करें, देन ये एट्रीब्यूट क्लिक करें या इन दो टेबल्स को ज्वाइन करें, इस पर्टिकुलर ऑर्डर में ज्वाइन करें. ऐसे कोई भी प्रोसीजर को आपको स्पेसिफाई नहीं करना पड़ता. यू जस्ट नीड टू मेंशन व्हाट टू गेट एंड दैट इज व्हाई इट इज अ सिंपलर लैंग्वेज देन योर रिलेशनल अलजेब्रा. We'll be starting with how to write some queries and some basic queries only regarding the tuple relation calculus. So first of all, we'll be looking at the journal syntax for this. So generally the syntax that is used in tuple relation calculus will be curly braces, and inside this curly braces you have to specify the query. So we use a vertical bar and behind this vertical bar we'll display the tuple that we want to retrieve. तो एक तरीके से आप ये सोच सकते हैं कि ये प्रोजेक्शन लिस्ट है कि आपको डिस्प्ले क्या होगा वो पता चलेगा by writing it behind that vertical bar. And then you have to mention a predicate. तो predicate means a condition. तो vertical bar के बाद में आप लिखेंगे predicate. So predicate basically means a condition. तो अगर कोई भी टपल उस कंडीशन को स्पेसिफाई करता है तो आप उन टपल्स को रिट्रीव. दिस इज द जर्नल मीनिंग ऑफ दिस सिंटैक्स. तो टी मीन्स ऑल द टपल्स दैट यू विल बी डिस्प्लेइंग. और आप कौन से टपल्स को डिस्प्ले करोगे दैट इज स्पेसिफाइड यूजिंग द कंडीशन ऑफ पी. तो जो भी टपल्स ने आपके प्रेडिकेट फंक्शन के कंडीशन को सेटिस्फाई किया है उन टपल्स को आप रिट्रीव करोगे. द मीनिंग ऑफ दिस जर्नल. That means that is set of tuples T for which the predicate P is true. So like for example, we can mention that this is an example. तो अगर हम पहले condition को देखें तो condition is tuple T belongs to the instructor table. तो instructor table को जो भी tuples belong कर रहे हैं you need to display those tuples. This is the simple representation of the journal syntax. और यहाँ पे जब हमने लिखा है tuple इंस्ट्रक्टर को रेंज कर रहे हैं, साथ साथ हम और भी कोई कंडीशन दे सकते हैं कि टपल का कोई बेसिकली एट्रीब्यूट स्ट्रिंग के इक्वल होना चाहिए था या सैलरी ग्रेटर देन 80,000 होनी चाहिए थी. तो हम यहाँ पे प्रेडिकेट में कोई भी कंडीशन को मेंशन कर सकते हैं. And beside this vertical bar, we'll just mention that we need to display all those tuples. This is the journal syntax. Now if you want to mention only specific attribute of this tuple, तो अगर आपको पूरी tuple नहीं retrieve करनी, tuple में से सिर्फ ID retrieve करना है या department name retrieve करना है, so in that case how you will do is you will mention T, that is your variable, and bracket में that attribute name, value of the tuple on attribute A. So that means you can mention like this, T salary.
तो दिस इज नॉट रेंजिंग टू द इंटायर टपल, बट टपल का एक बेसिकली एट्रीब्यूट के बारे में बात करें, दैट इज द सैलरी एट्रीब्यूट. दिस इज द नेक्स्ट वे you have to mention the attribute. One more syntax that we will be using is that the tuple will obviously belong to one of the other relation. जैसे यहाँ पे मैंने किया है कि tuple is belonging to the instructor relation. So this means tuple T is in relation R. These are some basic syntax that you need to know before we are trying to solve some queries. उन क्वेरीज को देखेंगे और साथ साथ उन क्वेरीज का आंसर लिखते वक्त ही विल लुक एट मोर ऑफ द सिंटेक्स दैट वी नीड टू नो while writing the queries using TRC. So for solving the queries again we'll be looking at the same university database example. So if the query specifies that find the ID, name, department name and salary for instructors whose salary is greater than 80,000. तो अगेन आप देख सकते हैं we'll be using this instructor table because यहाँ पे हमारे पास है ID, name, department name and salary. तो ये चारों attributes means complete instructor table को आपको retrieve करना है और उनके लिए जहाँ पे salary greater than 80,000. तो बहुत ही सिंपल है TRC में query को लिखना. तो beside this vertical bar we'll be mentioning it again. तो एक तरीके से एक वेरिएबल लेंगे हम फॉर अ रिलेशन. तो हमें कौन से रिलेशन के लिए ये लेना है, दैट इज फॉर इंस्ट्रक्टर टेबल. तो हमारा जो टपल है वो इंस्ट्रक्टर टेबल को बिलोंग करना चाहिए. एंड साथ साथ और क्या कंडीशन है कि उस टपल में जो सैलरी का आपका एट्रीब्यूट है दैट शुड बी ग्रेटर देन 80,000. So you need to retrieve some tuples. So that is a very simple query and a solution to this query. तो हमारा जो tuple है that should belong to this instructor relation and tuple में जो salary का attribute है that should be greater than 80,000. So you need to retrieve those tuples. So this is how we write queries in TRC. Now we'll be dealing with the topic wherein instead of the entire tuple we just want to display a particular attribute. तो अगर मुझे यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ इंस्ट्रक्टर का नाम डिस्प्ले करना है, बाकी कोई भी एट्रीब्यूट नहीं डिस्प्ले करना, तो थोड़ा सा ट्रिकी हो जाता है बिकॉज इन दैट केस वी हैव टू यूज 2 वेरिएबल्स. तो उन वेरिएबल्स का हम यूज कैसे करेंगे एक बार वो देखते हैं. So if the query specifies that find the ID of instructor whose salary is greater than 80,000. तो यहाँ पे हमारे को 2 अलग अलग वेरिएबल्स का यूज करना पड़ेगा. एक वेरिएबल सिर्फ और सिर्फ आईडी को पॉइंट करेगा इन दैट टपल एंड एक हमारा जनरल टपल का वेरिएबल रहेगा. तो पहले वाली क्वेरी एज इट इज रहेगी. तो वहां पे हमारे पास हर एक सारी टपल्स के लिए एक वेरिएबल हम यूज करेंगे. जैसे सपोज करो यहाँ पे हमारे पास इंस्ट्रक्टर टेबल है. तो इंस्ट्रक्टर टेबल को पॉइंट करने के लिए हमने एक वेरिएबल यूज कर लिया एस, राइट. अब एस इज पॉइंटिंग टू ऑल दी टपल्स, बट एस जो हमारे टपल्स को पॉइंट कर रहा है उसमें से सिर्फ आईडी को पॉइंट करने के लिए विल बी यूजिंग अनदर वेरिएबल दैट इज टी, बिकॉज इस पूरे टपल को नहीं हमें रिट्रीव करना, इसमें से सिर्फ और सिर्फ टी को हमें रिट्रीव करना है. तो उसके लिए हम कैसे क्वेरी को लिखेंगे, विल बी यूजिंग दिस वर्टिकल बार. तो अगेन जैसे हम स्पेसिफाई करते हैं कि हमारे पास एस है दैट इज बिलोंगिंग टू दिस टेबल ऑफ इंस्ट्रक्टर. वी विल बी मेंशनिंग देयर एग्जिस्ट सम एक्स दैट इज बिलोंगिंग टू द इंस्ट्रक्टर एंड देन जो ये एस का आईडी है दैट शुड बी इक्वल टू टी आईडी, बिकॉज हमें रिट्रीव सिर्फ टी को करना है. और अगर टी सिर्फ आईडी के लिए डिफाइंड है, एस तो पूरे के पूरे टपल के लिए डिफाइंड है, बट टी को हमने सिर्फ और सिर्फ आईडी के लिए डिफाइन करना है. सो हाउ विल बी मेंशनिंग दैट टी आईडी इज इक्वल टू एस आईडी. तो एस जो हमारी कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा, जो भी टपल हमारी कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा उसका आईडी हमारे टपल के आईडी के इक्वल है. एंड हमारी कंडीशन क्या है, एस की जो सैलरी है दैट इज ग्रेटर देन 80,000. So we need to retrieve some tuples. तो यहाँ पे बेसिक डिफरेंस क्या है इससे पहले वाली क्वेरी की, यहाँ पे S इंटायर टपल को रेंज कर रहा है बट T सिर्फ ID को रेंज कर रहा है. तो यहाँ पे जो आपने T रिट्रीव किया है दैट इज ओनली द एट्रीब्यूट ID. So I'll write the meaning here also.
तो यहाँ पे जो बेसिक डिफरेंस है दैट इज एस हमारी पूरी टपल को अरेंज कर रहा है एंड उन टपल्स को हमने सिलेक्ट कर लिया है जो कि जहाँ पे सैलरी जो है 80,000 से बड़ी है, बट उन टपल्स का हमने सिर्फ आईडी लिया है और उस आईडी को इक्वल कर दिया हमारे टी के आईडी के, एंड वी आर रिट्रीविंग ओनली टी. So that is the basic meaning. Or if you want to display only one attribute or two attribute, अगर यहाँ पे एक और attribute हमें display करना होता है like name, so we would have written that tuple का जो name है that is equal to s name. तो यहाँ पे s के name को भी हम tuple के name से या t के name से equivalent कर देते हैं. अब हम t को retrieve कर रहे हैं तो we would retrieve only id and name, क्योंकि t is defined ओनली फॉर आईडी एंड नेम. यहाँ पे एस जो है पूरे के पूरे इंस्ट्रक्टर टेबल के सारे एट्रीब्यूट्स के लिए डिफाइंड है, इसलिए हम यहाँ पे एस को डिस्प्ले नहीं कर सकते, पूरा टपल आ जाएगा. बट टी क्योंकि यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ आईडी के लिए डिफाइंड है, तो अब व्हेन वी रिट्रीव दिस आंसर फॉर दिस क्वेरी विल गेट ओनली द आईडी. So this is how we use or display only a specific attribute of the entire tuple.